Myself, Deepika Verma, English teacher of Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Nai Mandi, Muzaffarnagar. Today, I will teach you English subject Prose Lesson 2, The Sound of Music. Dear students, as you know, our English syllabus has been changed, and the new topic of English Prose Lesson 2 is the sound of music. Today we will read the first part of the sound of music. The title is Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. It means कि एवलिन ग्लेनी साउंड को सुनती थी बिना उसको सुने. That was a very interesting title and very interesting story कि किस तरीके से बिना सुने संगीत को सुना जा सकता है. The writer of the lesson is Deborah Cowley. Deborah Cowley is a female writer and she is a Ottawa-based writer and a broadcaster. She wrote more than 100 articles for Reader Digest. Her articles have been translated into dozens of languages of the world. She loves traveling and has traveled a lot. She has been an on-air broadcasting for CBC Washington in DC. That is the introduction of writer Deborah Cowley. Now we know about the main characters of the story. The main characters of the story is Evelyn Glennie. Evelyn Glennie, a 17 years deaf girl, एक 17 वर्षीय बहरी लड़की थी who fought for a physical disability and made her life a successful story. Second is Isabel Glennie. Isabel Glennie, Evelyn's mother. Third, the main character of the story is Ron Forbes. Ron Forbes, a tabla teacher of Evelyn. Evelyn के तबला टीचर थे who encouraged her to be a successful lady. Now we start. I give you the introduction of the lesson. The introduction of the lesson, the biographical feature, the sound of music, part 1 reveals the achievement of multi-percussionist Evelyn Glennie, who overcome her handicap of hearing impairment with great determination and confidence. The feature describes how, under the able guidance of Ron Forbes, she found a way out of her problem by developing an ability to sense music through different parts of her body. Now we explain the summary of the lesson. The summary of the lesson, we want to tell you the 10 points about the summary. ये जो कहानी है वो स्टार्ट होती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से. यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म का
दृश्य दिखाया गया है जहां पर एक 17 वर्षीय लड़की जो अपनी उम्र से भी कम दिखाई देती थी, वो प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन की कंपन को फील करती है और फील करने के साथ साथ वो नर्वस हो जाती है और साथ साथ उत्तेजित होती है। ये उसका इंग्लैंड में पहला दिन था। इंग्लैंड की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट डे था। वो एक संगीतज्ञ बनने की इच्छुक थी, लेकिन उसके लिए एक संगीतज्ञ बनना बहुत ही कठिनाई का काम था। क्यों? क्योंकि वो बहरी थी। अब यहाँ से कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी माँ जो है वो याद करती है कि जब वो 8 वर्ष की थी तो उन्होंने पहली बार फील किया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो किस तरीके से उन्होंने उसके बहरेपन को महसूस करना शुरू किया। जब वो पियानो के बजाने के लिए वो वेट कर रही थी, उसकी माँ उसको बार बार बुला रही थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। इस बात को एवलिन ने छुपाने की कोशिश की। She tried to conceal her deafness from his friends and teachers, but she can't. At the age of 11, her marks may be deducted. उसके जो मार्क्स थे वो कम होते चले गए, अंक घटते चले गए। तब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसकी माँ को एडवाइस दी कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। आगे के पैराग्राफ में फिर एक बात बताई जाती है कि वो एक लड़की को देखती है जाइलोफोन बजाती हुई, तो उसकी भी तीव्र इच्छा होती है कि वो भी जाइलोफोन बजाए, लेकिन उसके टीचर उसको डिसग्रेस कर देते हैं। तभी एक तबला टीचर है जिनका नाम अभी हमने मेन कैरेक्टर्स में पढ़ा था, रॉन फॉब्स। वो उसको एनकरेज करते हैं, वो उसके अंतर्निहित भावना को समझते हैं और वो उसको इंस्पिरेशन देते हैं, साथ साथ एडवाइस देते हैं कि टू लिसन द म्यूजिक नॉट by your ears but by your other parts of the body, कि म्यूजिक को तुम अपने कानों से नहीं सुनो बल्कि उसको अपने शरीर के दूसरे भागों से महसूस करो। इवलिन रियलाइज्ड दैट कि कुछ जो तरंगे थी वो उसकी बॉडी में आ रही थी, वो संगीत को महसूस कर पा रही थी। उसने देखा कि ढोल का जो ऊंचा स्वर है वो अपनी बॉडी के अपर वेस्ट पार्ट यानी कमर के ऊपरी हिस्से में फील कर रही थी, और जो ढोल का निचला स्वर था वो उसको ढोल अपनी कमर के नीचे के पार्ट में फील कर रही थी। उसके बाद से इवलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़ती चली गई और जल्दी ही वो अपने बॉडी पार्ट्स में म्यूजिक को फील करती थी। उसके बाद जब वो मात्र 16 वर्ष की थी तब उसने एक यूके टूर किया था विद ऑर्केस्ट्रा। एक यूथ ऑर्केस्ट्रा थे, उनके साथ उसने यूके का टूर किया और वहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में उसको हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो उसको मिले। उसके बाद अपनी इसी मेहनत और लगन के बल पर जो इवलिन थी वो एक मल्टी म्यूजिशियन बन गई। उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर सिद्धस्त प्राप्त हो गई। अपनी इसी लगन और अपने इसी मेहनत से वो लोगों को एंजॉयमेंट देती थी, वो लोगों को प्रसन्नता देती थी। इसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय कंसर्ट भी करती थी। अंतर्राष्ट्रीय कंसर्ट उन्होंने बहुत सारे किए, इंटरनेशनल कंसर्ट किए। उसके बाद आगे की कहानी में बताया जाता है कि जो राइटर है हमारे डेबोरे कौले, उनका एक 2 घंटे का डिस्कशन है इवलिन के साथ।
इस डिस्कशन में इवलिन उनको अपनी बहुत सारी बातें बताती हैं। वो कहती हैं कि चूंकि वो 11 वर्ष की अवस्था तक सुन सकती थी, इसलिए वो लोगों के होठ और उनकी आंखों को देखकर समझ जाती हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद वो राइटर को बताती हैं कि किस तरीके से वो म्यूज़िक को फील करती हैं। वो बताती हैं कि म्यूज़िक जो है वो धारा की तरह उनकी बॉडी में चल रहा है। वो ये भी बताती हैं कि किस तरीके से वो म्यूज़िक को अपने स्किन, अपने चिकबोन्स यानी गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि बालों में भी फील करती हैं। वो ये बताती हैं कि जब वो स्टेज पर जाती हैं तो वो नंगे पैर जाती हैं ताकि अपने पैरों के माध्यम से वो संगीत को महसूस कर सके। इसके आगे बताया जाता है कि 1991 में रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा उनको सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सोलिस्ट मीन्स होता है परफॉर्मर ऑफ सोलो, जो एकल वादक हो। उनको 1991 में रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी द्वारा सोलिस्ट ऑफ द अवार्ड दिया गया। शी वॉज अ वर्कोलिक मीन्स होता है वन हु कुड नॉट स्टॉप वर्किंग, जिसको काम करने से कभी नहीं रोका जा सकता। तो जो इवलिन थी वो एक वर्कोलिक थी, उनको कभी भी काम करने से रोका नहीं जा सकता था। वो एक बहुत अच्छे हृदय की महिला थी, वो लोगों को प्रसन्नता देना चाहती थी। सो शी डू फ्री कंसर्ट्स, वो फ्री कंसर्ट्स करती थी। उन्होंने फ्री कंसर्ट यानी चैरिटी कंसर्ट किए हॉस्पिटल में और जेल में, ताकि लोगों को वो प्रसन्नता दे सके, लोगों को खुशी प्रदान कर सके। जो उनके जीवन में जिस चीज़ की कमी थी, जिसको उन्होंने मेहनत से पाया था, वो दूसरों को भी बांट सके। At last, the last of the chapter, there is an inspiration for deep. कि she was the shining inspiration for deep. वो बहरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। वो इंस्पिरेशंस थी, वो कहती थी कि यदि मैं एक गंभीर रूप से बहरी होने के बावजूद मैं एक म्यूजिशियन बन सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। दिस इज द इंस्पिरेशन ऑफ द चैप्टर। इफ शी कैन डू इट, आई कैन डू। दिस इज ऑल्सो द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो यही जो है वो मॉरल है इस स्टोरी का, जिसको हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। थैंक यू।